it's me Mansha from Moonshine Art, and in this video we are gonna draw Iron Man. So yeah, without any further ado, let's get started. So guys, first of all I am using my Apsara mechanical eraser to erase the outlines that I have previously made. So I am just giving it a look of invisible, but it is not totally invisible. It is visible, but it won't be able to look like from the colors inside. So here I am using Camlin King triangular color pencils, and first of all I am using the orange shade. As we all know, glasses are red, so I am just trying to give it a look of burgundy, red and orange shade. So here I am using the black shade from Camlin triangular color pencils. Well, this is not the premium one. It is a level lower than that. Well, it's not that good. So I really recommend Camlin triangular color pencils, which were 200 rupees. These are of worth 100 rupees, and I don't think these are that good. But yeah, I'm still like, you can still use them. These are not that bad. So I'm just giving the burgundy look to it, and I'm just using a little bit of brown shade, red shade, and yeah. Now I'm giving the shine to the eyes. Well, जो शाइन है वो हमें कुछ इस तरह से देनी है कि एकदम रियलिस्टिक लुक लगे. सो उसी तरह से हमने इसमें शाइन दी है. एंड नाउ आई एम यूजिंग रेड शेड. एज वी ऑल नो, ग्लासेस आर रेड. तो हम लोग कुछ इसी तरह का इफ़ेक्ट इसके अंदर बनाने की कोशिश करेंगे. और यहाँ जो हमने कलर्स यूज़ किए हैं वो है स्किन कलर, ऑरेंज कलर, रेड के हमने 2 शेड्स यूज़ किए हैं, ब्लैक, ब्राउन. सो इसी तरह से हमने ये कलर्स यूज़ कर करके इसे बनाया है. सो यहाँ पे मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम यूजिंग ब्राउन शेड फ्रॉम टू मेक इट लुक डार्कर, डीपर, एंड या टू make it look prettier. So here I am using the brown shade, and now I am using orange, red, and I am just blending it with my Apsara white glass marker pencil. And yeah, this is all done, and yeah, we can just build layer upon it, like first layer, second layer. So like this we have to work on it. We can build as many as layer we want, but if your paper is of low quality, this won't work guys. Your paper will be like खराब हो जाएगा पेपर. सो अगर आपका पेपर की क्वालिटी अच्छी नहीं है, सो डोंट यूज़ लाइक दैट. आपको कम से कम लेयर के अंदर ही वर्क करना पड़ेगा. बट अगर आपका पेपर अच्छा क्वालिटी का है, सो यू कैन जस्ट बिल्ड मोर लेयर्स लाइक मी. So now here I am working on the glasses, and you can see a bit of reflection on the reference in the glasses. So I'm just making it like that. So I'm using my white glass marker pencil to make it, and now I'm making a bit darkness over there. And yeah, let's do this about the skin. And yeah, for skin I'm using orange, red, and or brown color. And I'm just blending them all together, and I'm using a bit of skin color too. So I'm just using my Apsara white glass marker pencil to blend them, and as you can see how I'm blending. So this, you can even use a finger to blend it, but here I'm using the back side of my Apsara white glass marker pencil to blend it. And guys, it really works. It really works. You should use it. And for highlighting I'm using again jelly roll pen. So let's turn to the under eye area. So for that I'm first making the lines with my dark brown shade, and I will just give some darkness over there with my orange shade. I'm just building up the base layer, and I'm just using it overall. I'm just making a layer of it. And after that I'm just using my red shade, and this is a light one. So I'm using the light shade near the lines, and I'm just giving a bit of shade darkness there. So because of it will look more 3D. So like this I have just made some darkness over there, and now I'm just using my Apsara white glass marker pencil, and I'm just using it over there, and I'm using the back of it to blend it like this. As you can see it blends so smoothly. So इसी तरह से मैंने इसमें blend कर दिया है इसे. एंड अगेन अब मैं इसके ऊपर मैं लेयर बना रही हूँ. आई एम बिल्डिंग लेयर विद माई रेड कलर
एंड इसके बाद मैं थोड़ी सी ब्राउन से भी लेयर बिल्ड अप करूँगी ताकि जो डार्कनेस है, जो डीपनेस है वो एकदम बनी रहे और जो लुक है वो एकदम 3D इफेक्ट का रहे. So for that I am using it, and as you all know, all my videos are recorded in one go. So sorry if I do any mistake in speaking or just like that. Just don't mind that. And yeah, I'm just making some lines with the dark brown shade, and you can see I'm using Apsara mechanical eraser as a pencil extender, and it is the best way to use any small pencil that is like that you can't use it with your hands. You can just use a pencil extender to extend the pencil size. This is how I work. So now I'm just blending the red color all over the lines that I have previously made, and for like giving it the orangish tone, I am using some orange shade that I think I forgot to take in the camera. Yeah. So now I am using the brown shade, and अब मैं उससे blend कर रही हूँ red से. So यही process है जो basically यहाँ पे चलता रहेगा, और जो वो wrinkle हैं उन सब का effect है वो कुछ इस तरह से ही create होगा. और जो second वाला जो आई के पास का एरिया है वो भी हम लोग कुछ इसी तरह से बनाएंगे. सो या अब मैं वापस इसे ब्लेंड कर देती हूँ और फटाफट इसे कंप्लीट कर लेती हूँ ताकि आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो. एंड या आई एम अगेन ब्लेंडिंग इट ऑल ओवर विद माई रेड Camlin King triangular color pencils. They were 200 rupees and they're totally worth it. Guys, these pencils are bomb. Amazing. You should try them, and I really recommend it that if you are a beginner you should try it, because they are not so expensive even, and they are butter. They work like butter, and these are really amazing. But the tool that you have to be yours is like Apsara white glass marker pencil is the most important tool. So yeah, so I'm just working again. So as you can see in the reference, it looks a bit maroonish, so I'm not going with that because I don't have that color. So I'm just creating in my own way, and yeah, in my own color. So I'm just making some lines and I'm giving it a shine, and you can see I am just creating some जो भी चश्मे के पास का जो एरिया है वो क्रिएट कर रही हूँ, फ्रेम बना रही हूँ चश्मे का. एंड यस, गिविंग सम शाइन विद माई जेली रोल पेन. और जो मैंने चश्मे के फ्रेम पे जो शाइन दिया था सिल्वर कलर से, मैं उसे थोड़ा सा लाइट कर रही हूँ, और अगेन उसके ऊपर मैंने उस पर फिर से जेली रोल पेन से हाईलाइट्स क्रिएट करके फिर से उसे थोड़ा सा लाइट किया है मैंने यहाँ पे, ताकि जो लुक है वो स्मूथ लुक का रहे, बट स्टिल वी वांट दैट शाइनी लुक. सो मैंने उसे फिर से क्रिएट किया था. एंड अगेन अब हम लोग यहाँ पे वर्क कर रहे हैं. जहाँ मैंने यूज़ किया है ब्लैक, और उसे ब्लेंड कर रही हूँ सिल्वर कलर से. और इसके बाद अब कुछ नहीं करना है, सिंपल जेली रोल पेन से इसमें शाइन क्रिएट करनी है. ये पेन आपके पास होना बहुत ही मस्ट है, बिकॉज दिस इज़ द मेन टूल दैट वी हैव यूज्ड इन दिस वीडियो. एंड आई रियली डोंट नो वेयर द वीडियो गोज़, क्योंकि मैंने इस लेफ़्ट चीक का भी वीडियो बनाया था, बट पता नहीं कहाँ कैसे कब गायब हो गया है, मिल नहीं रहा है. आई थिंक मैंने डिलीट कर दिया है. और यहाँ पे एक मैं आपको टिप देती हूँ कि अगर आपके पास ब्लेंडर नहीं हो, जो नॉर्मली यूज़ करते हैं सब लोग, वैसे ज़्यादा महंगा नहीं आता है, पर अगर नहीं हो तो क्या करो, कोई भी पेपर लो, उसे इस तरह से मतलब फोल्ड कर लो जिस तरह से भी आप उसके साथ कंफर्ट फील करते हो, एंड यू जस्ट हैव टू ब्लेंड इट. और ये बहुत ही प्रॉपरली ब्लेंड करता है गाइस. अगर आप इसे अच्छे से ब्लेंड करते हो तो एकदम प्रॉपरली ब्लेंड करता है. एज यू कैन सी द रिजल्ट्स, एंड आई रियली लाइक दैट. क्योंकि इस टाइम पर मेरे पास वो ब्लेंडर्स नहीं थे, क्योंकि यूजुअली आई डोंट यूज़ चारकोल एंड ग्रेफाइट, आई जस्ट डू कलर्ड पेंसिल. सो वो उसके लिए काम नहीं आते हैं, तो मैंने इसलिए कभी उन्हें परचेज़ नहीं किया. सो
सो गाइस लेट्स स्टार्ट विद द टेक्सचरिंग ऑफ द स्किन। सो टेक्सचर से पहले हम लोग यहाँ पे जो भी हाइलाइट्स हैं और कॉन्टूर एरिया है उसका ध्यान रख के जहाँ जहाँ हाइलाइट्स हैं वहाँ पे हम लोग इरेजर से इरेज कर लेते हैं, और जहाँ जहाँ पे हमें डार्कनेस देनी है वो हम लोग पहले ही दे चुके हैं और इसे इजीली ब्लेंड भी कर चुके हैं। तो अब मैंने यहाँ पे इरेज कर दिया है जो जो हाईलाइटेड एरिया था, एंड उसे मैंने ब्लेंड भी कर लिया इजीली। और अब मैं यहाँ पे बना रही हूँ आईब्रोज। तो फॉर आईब्रोज मैंने यहाँ पे जो बेस है वो ऑलरेडी रेडी कर लिया है कि मुझे किससे बाहर नहीं जाना है और कहाँ तक इसे कैसे बनाना है। सो अब मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ चारकोल पेंसिल्स, और मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी द सॉफ्ट वन क्योंकि यही सबसे ज़्यादा अच्छे से वर्क करती है। आई डोंट नो वाई बट द न्यूट्रल वन एंड द हार्ड वन डोंट गिव द बेस्ट रिजल्ट, सो आई एम जस्ट यूजिंग द सॉफ्ट वन। एंड ये वर्क तो अच्छा करती है चारकोल पेंसिल, बट इसमें जो वर्क होता है वो थोड़ा सा मतलब एकदम परफेक्ट एकदम लाइन नहीं आती है जैसे हम लोग कोई भी कलर पेंसिल यूज़ करते हैं तो आती है, पर या स्टिल इट इज़ बेस्ट। और अब मैं जो भी स्ट्रोक्स थे वो बनाने के बाद उन सबको ब्लेंड कर लेती हूँ अपने पेपर ब्लेंडर से, और इरेज़र से फिर से कुछ लाइंस क्रिएट कर रही हूँ जहाँ जहाँ पे हेयर्स नहीं हैं या मुझे नहीं चाहिए वहाँ पे मैंने फिर से इरेज करके उसे वापस से वहाँ का थोड़े से हेयर के स्ट्रोक्स दिए हैं। और जब तक मुझे एकदम रेफरेंस जैसा सिमिलर लुक नहीं मिलता मैं ये जो प्रोसेस है वो लगभग चलाती रहती हूँ, और एट द एंड जो लुक है वो बहुत ही अच्छा था। सो या अब हम लोग स्टार्ट करते हैं फिर से। तो मैं कुछ हाइलाइट्स और दे रही हूँ और इसे मैं अब की बार ब्लेंड कर रही हूँ अपने ब्रश से। तो ब्रश से ब्लेंड करना भी बहुत इजी है, बट इसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है, बट जो ब्लेंडिंग है वो बहुत ही स्मूथ और अच्छी ब्लेंडिंग होती है। अब मैं यहाँ पे उसी चारकोल पेंसिल को मैंने थोड़ा सा टुकड़ों में तोड़ के यूज़ कर दिया, और जहाँ जहाँ पे मुझे एकदम लाइट ब्लेंडिंग देनी थी वहाँ पे मैंने ब्रश से यूज़ करके वहाँ किया। अब मैं यहाँ पे इरेज़र से डॉट्स बना रही हूँ। यू कैन सी द रिज़ल्ट, बहुत ही ज़्यादा अच्छा टेक्सचर आ रहा है स्किन के अंदर। सो आई एम जस्ट क्रिएटिंग दैट। बस आपको डैपिंग मोशन के अंदर अपने इरेज़र को करना है यूज़। और यहाँ पे अगर आपके पास है इलेक्ट्रिकल इरेज़र तो वो वे बेटर है इससे, बिकॉज वो एकदम परफेक्ट फिनिश देता है आपको। एंड या अगेन आई एम वर्किंग ऑन द नोज़, एंड फॉर नोज़ सबसे पहले मैं वहाँ लाइंस बना रही हूँ जहाँ जहाँ मुझे नोज़ को बनाना है, एंड देन मैं शेडो इफेक्ट क्रिएट कर रही हूँ। थोड़ा सा ज़्यादा डार्क नहीं करूँगी स्टार्टिंग में, क्योंकि सीधा ही अगर आप चारकोल पेंसिल यूज़ कर दोगे तो जो वर्क है बहुत ही ज़्यादा मेहनत लग जाएगी उसे प्रॉपरली अच्छा दिखाने के लिए। तो सबसे पहले ग्रेफाइट के साथ चलो, फिर आपको डार्कनेस चाहिए तो यूज़ करो चारकोल पेंसिल, वरना उसकी इतनी कोई ज़रूरत नहीं होती है। अभी भी देख सकते हो कि मैं चारकोल नहीं यूज़ कर रही हूँ, ग्रेफाइट से ही यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि एक बार जो बेस लेयर है मुझे लाइंस पता चल जाए कि मुझे कहाँ पे कितने एरिया तक वर्क करना है, उसके बाद अगर मैं चारकोल पेंसिल यूज़ करूँगी तो जो वर्क है वो एकदम बेटर रहेगा। और कुछ जो चेहरे पे स्पॉट्स थे वो भी मैं इस ग्रेफाइट वाली से ही बना लूँगी। तो इस तरह से एकदम रेफरेंस को देख के आपको बनाना है। और अब मैं यहाँ पे कुछ डॉट्स क्रिएट कर रही हूँ जहाँ जहाँ पे हाइलाइट्स हैं नोज़ में वो क्रिएट कर रही हूँ। और यू कैन सी कि जो इरेज़र है वो एकदम शार्प रख रखा है ताकि वो उसका यूज़ एकदम मोनो इरेज़र जैसे कर रही हूँ मैं यहाँ पे। वेल अगर आपके पास ऐसा इरेज़र नहीं है तो आप अपनी पेंसिल के जो मैकेनिकल पेंसिल के पीछे जो इरेज़र आता है वो भी यूज़ कर सकते हो एज ए मोनो इरेज़र। बट या ये भी बहुत अच्छा है, ये भी सस्ता है, ये ज़्यादा महंगा नहीं है, तो आप ये भी परचेज़ कर सकते हो मार्केट से। एंड या अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ चारकोल से वर्क करना, और सीधा मैंने वर्क करना स्टार्ट नहीं किया, हल्का हल्का वर्क कर रही हूँ। थोड़ा सा किया देन उसे ब्लेंड किया, फिर थोड़ा किया फिर उसे ब्लेंड किया। तो ये वर्क कुछ इस तरह से चल रहा है, आप देख भी सकते हो। मैंने शायद मैं ब्लेंड वर्क करने वाला वीडियो नहीं ले पाई। और अब इसमें थोड़ा सा शाइनी इफेक्ट देने के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ जेली रोल पेन का। और जेली रोल पेन को एकदम डॉट मोशन के अंदर आपको इसमें चलाना है, और जहाँ जहाँ मुझे हाइलाइट्स चाहिए थे वहाँ पे मैंने ज़्यादा चलाया है, और जहाँ कम हाइलाइट्स चाहिए मतलब सिर्फ टेक्सचर क्रिएट करना है वहाँ पे मैंने डॉट करके फिर उसके ऊपर एक पिंच
मतलब मैंने 5 डॉट्स किए, फिर उसके ऊपर एक फिंगर टच कर दी, तो जो डॉट्स थे वो थोड़े से कम विजिबल हो गए, जो अच्छा सा लुक क्रिएट करते हैं। और जहाँ जहाँ पे हाइलाइट्स नहीं थे और फिर भी डॉट्स क्रिएट करे हैं, तो मैं उसे वापस से इस तरह से ब्लेंड कर देती हूँ, ताकि वो जो डॉट है वो थोड़े से लाइट हो, थोड़ा कम विजिबल रहे और एकदम स्किन का जो टेक्सचर है वो एकदम उभर के आए और वैसा ही वर्क लगे। सो यार, दिस वाज द वीडियो। अभी तक इसका बहुत सारा काम बाकी है और मैं इसका जो आगे का जो पोर्शन है वो अगले वीडियो के अंदर ही आपको दे पाऊँगी। सो टिल देन, कीप ग्रोइंग, कीप वॉचिंग और कीप क्रिएटिंग। अगर आप भी मेरे साथ ड्रॉ करके सीखोगे तो डेफिनेटली यू कैन ऑल्सो बिकम अ ग्रेट आर्टिस्ट, और आई थिंक कभी आप मेरे से भी अच्छा ड्रॉ कर पाओगे। एंड अगर आप मुझे ये ड्राइंग करके टैग करते हो तो आई विल डेफिनेटली शेयर इट ऑन माई इंस्टाग्राम अकाउंट एंड ऑल्सो ऑन माई यूट्यूब चैनल। सो या, डोंट फॉरगेट टू टैग मी इन योर आर्ट वर्क्स। Yeah, this was the video. I hope you enjoyed it। और अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है वीडियो, तो अभी कहीं जाना मत, अभी भी 1.5 मिनट का वीडियो आई थिंक बचा है, तो उसे भी देख के जाना, क्योंकि इसमें भी अभी जो है फॉरहेड का जो टेक्सचर है वो कैसे क्रिएट किया है वो भी मैंने इसमें बताया है। और या, जिस तरह से हम लोग जेल पेन से वाइट डॉट्स क्रिएट कर रहे हैं, उसी तरह से हम लोगों को इसके अंदर पेंसिल से भी डॉट्स क्रिएट करने हैं। सो डोंट फॉरगेट दैट। आपको अगर स्किन का टेक्सचर प्रॉपर देना है तो वो भी यूज़ करना। ट्रिक बहुत अच्छी ट्रिक है ये। एंड यू कैन इवन, मतलब आप इस वे में अगर ड्रॉ करते हो तो आप वाटर में जो स्केचेस होते हैं वो भी इजीली बना सकते हो, कि चेहरे पे पानी है तो आप वो भी, उन्हें भी इजीली स्केच कर सकते हो विद जेली रोल पेन, बिकॉज आपको ये एकदम अच्छा सा फिनिश देता है, शाइनी फिनिश देता है। सो या, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड इसके बाद मैंने थोड़ा सा वर्क किया था इसके ऊपर, तो इसका जो लुक था वो कुछ इस तरह का आया था। अभी थोड़ी देर में आपको दिख जाएगा। सो ये वर्क लुक हो गया था बाद में इसका। एज यू कैन सी द हाईलाइट्स बहुत ही ज़्यादा बढ़िया हैं। सॉरी गाइस, मैं ये वीडियो शूट नहीं कर पाई, पता नहीं कैसे, पर सॉरी। इसके आगे का जो वीडियो है वो मैं डेफिनेटली शूट करके आप तक पहुंचा दूंगी। सो या, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय, लाइक दिस वीडियो।